कल का मुझे टाइम नहीं आया. I should have. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we are reading about the memory management. Okay. Now in the memory management, I told we had basically two. आज आपको नॉन कॉन्टिग्यूअस और कॉन्टिग्यूअस में समझ आ जाएगी फर्क. We had a contiguous, okay, and we have a non-contiguous memory allocation. Right? इसके बारे में मैं लिख चुका हूँ. There is chat coming, something like that. Put on your cam. This is protocol. We have to follow. Yes, everybody has to put on the camera and sit properly, like a students. Okay, not you sleep and like that. What is your name, Sahil? Try to sit like a student. Okay, I shouldn't be telling you these things. You are grown-up kids. You know yourself what is good and what is bad. And memory management is a contiguous and non-contiguous. We will try to understand today what is the contiguous and non-contiguous and what's the difference between the two. Okay, today we will understand it, inshallah ta'ala. So in contiguous memory allocation, we said that we want to have a block of memory, okay, and the process is given in a contiguous manner. Boundary contiguous means you have a one block, its boundary is attached to the second block, its boundary attached to the third block, and so on. And we had a problem here of internal fragmentation and external fragmentation. We have read about it. Okay, we have internal fragmentation, we have external fragmentation. We started from the very basics that we said we have no operating system called as the beer machine. We have read about it in the previous lecture, so I'm not writing too much, just giving some intro. And then we said resident monitor, which is just an operating system with some user space, a single user space to a single user, and no multi-programming, nothing else. Okay, na? Everybody understand this. Then after that we said no, we need a lot of programs to be in the RAM, because von Neumann is telling us to keep, if you want to run a program, it has to be in the RAM. Okay, now if anyone in the meantime has a question, he can put up a chat and raise his hand or something. I can also unmute you. And there are some people coming up. I'm not going to allow them. Kazim will inform them that they should come early and they should open up the cam. So I'm not gonna allow them anymore. Now Atufa Gul will tell us that it is in a contiguous memory allocation that we have the multi-programming with fixed task, MFT, and it's of two types. Okay, either we have either we have in MFT we have the fixed partitions, and we have the in fixed partition, in MFT both are fixed partitions, but here they are same size, or we can have a variable size partition. Before that we adopted the swapping and all. We have done that, right? Before we went from this to the swapping model, where we could actually load few other users from the hard disk, and then we put up the buffers there so that it becomes easy to swap, because swapping mein bahut time lagta hai. The CPU was not available, so we said if we have a buffers there, so we can, in the meantime, processor is working on a one job, in the meantime the others will come up, and we can work on that, right? Nice. Now after that we said we need, because this is a multi-programming scenario, we need the many jobs to be in the RAM at a time. Okay, so for that case what we do is we have the MFT. Okay, MFT is multi-programming with fixed task. Why fixed task? Who will tell me why fixed task in a chat window? Tell me why we say it's a fixed FT, because the next one is the MVT. Okay, and it is the MFT. MVT हमने पढ़ा था क्या? हमने कहाँ तक पढ़ा था? नहीं, हमने MFT ही पढ़ा था. MVT आज पढ़ना है. What is the fixed task? Can anyone tell me? Otufa, can you ask, unmute? Yes, unmute yourself and tell us. Why is it as a fixed task? सर क्योंकि कल आपने बोला कि हम इसमें एक बॉन्ड ट्री बनाते हैं, तो उस वजह से इसको फिक्स्ड बोला जाता है, और इसमें हमें वही से एक मतलब स्टैटिक दिया जाता है कि अगर आपको
इसमें मेमोरी दी गई है 50K की 50K की, दैट मीन्स वो हमारे लिए फिक्स्ड रहता है, हम उससे ज्यादा नहीं उसमें डाल सकते। अगर हम काम उसमें कंटेंट डालेंगे तो उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। लेकिन अगर हम इसको स्टैटिक बोलते हैं उसका मतलब क्या जी, है? That मतलब ये these कॉन्स्टेंट these होता है partitions हमारे are created at the bond line, something you told yesterday, I didn't remember that, कोई बात नहीं, but कोई बात नहीं. I'm saying these yes, Kazim, can you add why is it static? Because these boundaries are created at the फिक्स्ड टास्क उसको बोलते हैं पार्टीशन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज करता नहीं, है। ये कब हमने क्रिएट किए ये boundaries? Somebody is saying in the chat window, I guess. boot time. Boot time, yes, because yeah, boot time. Hanan Shaukat is also saying, Muhammad Haris is saying nice. Ubaid is saying cannot change its partition. Ubaid is saying cannot change its partition. Mashallah, that is one that's really nice because it is created a boot time. We cannot change its partitions. Ubaid is this guy, Yeah. right? Okay, good, nice, Ubaid, very good. Keep interacting. So that is why we have these things as static. That's why we have these MFT as a static partition because it's created a boot time. And now we have already done one thing. We created a same partition size, ठीक है, और we created a variable partition. ये ऐसा है कि आपने अलमीरा बनाई, अलमीरा में आपने same size के shelves बनाए हैं. अब उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर उस शेल्फ से बड़ा आया या उस शेल्फ से बहुत छोटा आया तो छोटे ने जगह जाया करनी है उस शेल्फ की, बिकॉज एक शेल्फ एक चीज को मिलेगी, क्योंकि बिकॉज फॉर एवरी प्रोसेस वी नीड दिस टू एड्रेसेस. अगर मेरे पास ये है, ये पार्टीशन है, इसका अपर बाउंड और इसका लोअर बाउंड, ये एड्रेस जरूरी है इस प्रोसेस के लिए. सो हर एक प्रोसेस को ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड होना चाहिए ताकि मुझे पहचान में आए कि ये कहां पर है रैम के अंदर. आई कैन नॉट पुट अनदर प्रोसेस P3 इन इट, सो दैट हैज टू बी गिवन न्यू पार्टीशन. अब अगर आपने फिक्स्ड शेल्फ्स बनाए, उसमें प्रॉब्लम ये होगी अगर आप बहुत छोटी प्रोसेस आ गई तो वो शेल्फ जाया हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें बहुत जगह जाया हो जाएगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. और अगर बड़ी प्रोसेस आ गई जो कि उस शेल्फ में नहीं पहुंचेगी, है ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तो पहुंचेगी ही नहीं. इसलिए हमने कहा कि इसकी वेरिएशन हमने कर दी कि आप थोड़े ना शेल्फ्स को बड़े छोटे बना दो, कोई बड़ा बना दो, कोई छोटा बना दो. जैसे आप किचन में होता है, आपको समावार जो हमारा होता है कश्मीरी समावार, वो लंबा चौड़ा होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम शेल्फ नीचे वाला अक्सर शेल्फ बड़ा बनाते हैं ताकि वो बड़ी चीज जो है ना उसमें पहुंचे. और कुछ चीजें छोटी होती है जैसे कप्स वगैरह है तो वो उसमें पहुंच सकते हैं, एंड सो ऑन. सो हमने वो किया, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होती है. सो साजिद, you tell me what is the difference between internal fragmentation and external fragmentation. Unmute yourself and tell me. Sajid, can you tell us? Unmute yourself. What is difference between internal fragmentation and external fragmentation? Mohammed Haris, can you tell us? You're looking very cute, by the way, so you should be telling us. Unmute yourself. Yes. Sir, in internal fragmentation, as suppose we have an 50K memory and we get a task of 30K. Okay. So there might be a space remaining that we cannot use after that. Very good. Because the partition is fixed, and after that, if we have to do another task, then there will be another part for that. So this is Okay. an internal So fragmentation. internal fragmentation is within that partition. अगर 50K Yes, में sir. आपने 30K डाल दिए और 10 Yes, उसमें sir. 20K जाया हो गए, that's internal fragmentation. What is the external fragmentation? So we get a task of more than the partition, and Yes. we are not able to do it. So Very good. we can't just use it. Yes, nice, nice. Very good, Haris. You are such a good boy. So मतलब ये है कि अगर आपको पार्टीशंस अपने दिए या ऑक्यूपाई हो चुके हैं, चाहे इंटरनल व्हाटएवर, अब मेरा जगह बचती है लेकिन मेरी पार्टीशन जो है उससे ज्यादा है, जैसे 40K की है, वो उसमें पहुंच नहीं रही है, ठीक है ना, तो दैट्स एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. सो इसी के लिए हमने क्या किया काम, वी मूव द नेक्स्ट कॉल्ड MVT. हमने कहा हम क्यों पार्टीशंस बनाएंगे. देयर आर सम पीपल इन द waiting room, like Benish Yaqub is there. I'm not going to admit anyone, okay? So what I'm saying is there are some chats coming up. Let me see what the chat's doing. Okay, there are some answers. I should put up the chat on this side so that I can see it all the times. Good.
Hanan Shaukat is saying, internal within partitions, external overall fragmentation. Good, fragmented. So to do this, who is Hanan Shaukat? Let me see his face somewhere. Where is the guy? Hanan Shaukat. Where are you? Can you raise your hand, Hanan Shaukat? I can't see you. Hanan Shaukat, I got it here with the beard, right? Good, good. Keep on chatting and keep on answering. This is really nice because by that I understand how much you learn. Okay. And what I'm saying is now is हम ये बोलते हैं कि भाई हम नेक्स्ट अब मेमोरी मैनेजमेंट में जाएंगे. हम बोल रहे हैं कि हम क्यों पार्टीशन बनाएंगे बूट टाइम में, क्योंकि बूट टाइम में परेशानी है. हम क्यों ना उसी वक्त पार्ट शेल्फ, हमने शेल्फ खड़े किए, पहले ही शेल्फ खड़े किए, चीजें देखी नहीं, तो उसमें छोटा बड़ा तो होगा ही. अब मैं कह रहा हूँ क्यों ना हम एक काम करें कि हम एक शेल्फ बनाए नहीं, हम पार्टीशन बनाए नहीं, हम उस वक्त बनाएंगे पार्टीशन जब प्रोसेस आएगी और उतना ही बनाएंगे. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे काम, हम ऐसा करेंगे कि हम एक ओपन स्पेस रखेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया अपनी जगह, कर्नल को दे दिया और बाकी कोई पार्टीशन नहीं बना. ठीक है ना. अब जितने साइज की आपको ये आ रही है, जैसे 40K की प्रोसेस आ गई तो बनाओ 40K का. अब बहुत बड़ी आ गई 120K की, नो प्रॉब्लम, बनाओ 120K. ठीक है. अब अगर 30K की आ गई बनाओ 30K की. 5K की आ गई, ठीक है, बनाओ 5K का ही पार्टीशन. समझ में आई. अच्छा, अब 10K की आ गई तो बनाओ 10K का पार्टीशन. अब यहां मान लीजिए 5K या 10K कुछ बचते हैं और लास्ट में 20K की आती हैं, 40K की आती हैं, तो ये हम असाइन नहीं कर सकते लास्ट वाली थोड़ी सी. ठीक है ना. वी कैन नॉट डू दिस. सो जब हम ये नहीं कर सकते तो दिस इज दिस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? हु विल टेल मी? Anyone who can tell me can raise your hand. Just like this, raise your hand like this. I'm watching you, na? You can watch. Is this internal fragmentation or external fragmentation? Saeed Arifa, you wanna say? आप कैमरा ठीक कर रही हो या कि आप रेज हैंड कर रही हो? Saeed Arifa, you can unmute yourself and tell. This is external fragmentation, simple as it is. External. Mohammed Hussain Mullah is saying external. Yes. Ubaid is saying external. Everybody is saying, Hanan is saying external. Yeah, it's external fragmentation because it's not within the partition, it is outside the partition. ठीक है ना. क्योंकि पार्टीशन के बाहर ये अब खुली स्पेस है ना, ये खुला मैदान है, ये इसमें होगी. दिस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. इज देयर एनी चांस ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हियर? इज देयर एनी चांस ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हियर? Yes or no in the chat window. Otufa has raised her hand. Yes, you can unmute. I will unmute yourself. Unmute and tell us. No. No, very good. There is no chance of. Otufa is saying no. Muzaif is saying there is no chance of internal fragmentation. It's so nice. So we have arrived at a nice partition mechanism, right? But it is of no use. It's not a good thing. It's not a good. Why it's not a good? Let us see why it's not a good. Because these processes have come in the first time. These have come, okay, but they will not stay forever. After a few moment of time they will finish and we have to load other processes, right? Say for example this process is done. Now this is open space, this is unallocated, this is not a partition now anymore because this is done. 120 काम नहीं किया, so that means I don't have this as a partition now, this as a free space. क्योंकि MVT था ना, इसमें partition मत पहले थे, इसमें पार्टीशन पहले नहीं थे, इसमें पार्टीशन हमने बनाए. जब प्रोसेस हो गई खत्म तो पार्टीशन खत्म. अब 120 की रह गई जगह है ना, दिस इज फ्री स्पेस 120. अब अगर आपको आते हैं और जगह, हम जैसे 50K की आती है तो मैं दूंगा इसमें 50K, इसमें से 50K मैंने इसमें से दे दिए तो बच गया बाकी 70K का बच गया इसमें. ठीक है ना. अब क्या हो सकता है विद इन अ टाइम पीरियड, विद इन यू कैन विजुअलाइज योरसेल्फ विद इन अ फ्यू मोमेंट ऑफ टाइम, जब जो ही प्रोसेस आती हैं जाती हैं निकलती हैं आती हैं जाती हैं, इसमें कहीं यहाँ पे आधा कहीं यहाँ आधा खुला है, कहीं आधा वहां खुला है. तो कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है कि मैक्सिमम टाइम्स आएगी ये सिचुएशन कि आपको ये प्रोसेस तो है लेकिन यहाँ 20K खुला है. Binisha Yaqub is trying to enter many times, so I will let me admit her for a while.
Binish Yakub, yes, Binish Yakub, open up your camera. And why are you so late? Binish Yakub, you have to open up your camera or I will remove you. And Adil Rasul, you have just come up and it is almost class is finished. You should open up your camera or I'm going to remove you. Okay, it's just a wastage of time. Yes, Binish Yakub is with camera. Okay, nice. Binish Yakub, you have tried a lot of times to come because you came late. That's why I didn't allow you. So you should come early, okay? Everybody is with cam. Is anyone without cam? No, nice. Mufaiz Tasadduk is with, no, he's with cam. Okay. Anyways, so what I'm saying is with the passage of time, the things can happen is कि मेरे यहाँ पे मानो 10K की free है, फिर ये 40K बंद है, 20K यहाँ पे free है, and so on. मानो 10K यहाँ पे free है, है ना, प्रोसेस आ गई चली गई, तो फिर हमने फिर से असाइन किया, अब 10K यहाँ मिला है, 10K यहाँ बच गया, 10K यहाँ बच गया है, 10K यहाँ बच गया, मानो कुल 40K मेरे पास है, अब 40K की प्रोसेस आ रही है, 40K है फ्री, आपको समझ आ रही है? जैसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में होता था कि यहाँ पे 10K, यहाँ पे 10K, यहाँ पे 10K खुला था और मेरे पास स्पेस होती थी लेकिन प्रोसेस घुसती नहीं थी क्योंकि उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जाया होती थी वो मेमोरी, यहाँ पर भी तो जाया हो रही है, यहाँ पे हालांकि पार्टीशन, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है क्योंकि ये 10K पार्टीशन के अंदर नहीं, पार्टीशन के बाहर है, यानी कि मान लीजिए ये 120K का पार्टीशन था, अब जब ये भाग गया, ये प्रोसेस खत्म हो गई, 120K खुल गया ना, इसमें 100K की प्रोसेस आ गई, अब दूसरी मैंने 100K दे दिए तो 10K बच गए ना, बस में आ रही है, यानी कि मुझे बच रहे हैं ना, सी कि मेरे पास ये पार्टीशन 120K का था, अब ये खत्म हो गया तो फ्री हो गया फिर से, अब दूसरी प्रोसेस आ गई 100K की, तो 10K बच गए ना, लेकिन ये 10K पार्टीशन के एक्सटर्नल है, अब ये पार्टीशन के अंदर ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गई, ठीक है ना। तो ये किस्सा वही हो गया जो वहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती थी कि जब 120 का फिक्स्ड अगर मेरे पास होता पार्टीशन, उसमें 100 अगर 100K की आती तो उसमें 10K पार्टीशन के अंदर रहते, अब यहाँ पार्टीशन के अंदर नहीं, पार्टीशन के बाहर रह रहे हैं, ये बात सेम वही हो गई। पहले लग रहा था बड़ी खूबसूरत है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही है, बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है ना, तो बहुत जबरदस्त चीज है, कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही है, और लास्ट में थोड़ा सा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है, लेकिन जब प्रोसेस आ रही है जा रही है तो उसमें तो आपको लास्ट में इसमें जगहें बचती हैं उधर इधर की, तो जब जगहें बचती हैं उधर इधर की और उसमें हम भर नहीं सकते, लेकिन इसमें एक फायदा ये है कि पार्टीशंस हमने कब बनाए, बूट टाइम नहीं बनाए थे, ये हमने बनाए थे कब, रन टाइम पे, डायनेमिक, दिस आर डायनेमिक पार्टीशंस। तो इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, हम कहते हैं भाई हम क्यों ना एक चीज करें, हम इसकी कंपैक्शन करें, दैट्स कॉल्ड एज कंपैक्शन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? यानी कि अगर फ्रैगमेंटेशन हो गई है उसको डीफ्रैग करें हम, डीफ्रैगमेंट जो आप हार्ड डिस्क में करते हो, जैसे हार्ड डिस्क में करते हो, आपने लोड किया, फिर आपने डिलीट किया, ये मूवी इंस्टॉल की, फिर डिलीट की, तो उधर इधर जगह होती है, फिर डीफ्रैग में क्या करता है वो काम, वो सारे जो है यूज्ड स्पेस वो एक जगह रखता है और खाली जगह एक साइड करता है, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें 10K यहाँ पे, 10K यहाँ पे, 10K यहाँ पे खुली है, तो हम करेंगे काम इसमें, जो पार्टीशंस कंपैक्शन करके जो पार्टीशंस ऑक्यूपाई है वो इस साइड लाएंगे और जो फ्री स्पेस है वो एक जगह जमा करेंगे सारी, क्योंकि मैं अभी कह रहा था ना 10K यहाँ, 10K यहाँ, 10K यहाँ, 10K यहाँ, मानो इस तरीके से सिनेरियो बन गया और मेरे पास 50K की मेमोरी थी, लेकिन वो जाया थी क्योंकि उसमें छोटी छोटी करके थी, मैंने वो 10K सारे जमा कर दिए एक साइड, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बाउंड्री में उधर इधर कर सकता हूँ अब, क्योंकि जो बाउंड्रीज मैंने बनाई ये स्टैटिक नहीं है, क्योंकि स्टैटिक में हम बूट टाइम बना सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे डायनेमिक है, आई कैन चेंज द पार्टीशंस, आई कैन चेंज दिस बाउंड्रीज, तो इसमें कंपैक्शन हम करते, जो आप हार्ड डिस्क में करते हो डिफ्रैगमेंटेशन, उसमें क्या करते हैं हम, ये जो सारी जो यूजर स्पेस है वो एक साइड रखेंगे, जो खाली जगह बची थी ना बीच बीच में ये होल्स, उनको इकट्ठा करके एक जगह करेंगे, अब ये बन गई बड़ी वाली खाली जगह, अब मैं इसमें भर सकता हूँ, तो हमने सोचा मसला हल हो गया, ये तो सारा ये प्रॉब्लम ही हल होगी, लेकिन प्रॉब्लम हल नहीं हुई, क्योंकि कॉम्पैक्शन जो है ये बड़ी कॉस्टली है, जो कॉम्पैक्शन क्या है ये कॉस्टली है, क्यों, जब आप कॉम्पैक्शन करते हो तो सीपीयू इज अनअवेलेबल और आपको हर कुछ टाइम के बाद ये करना पड़ रहा है, आप हर टाइम के बाद ना प्रोसेस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो आपको फिर से चल रहा है कि भाई कॉम्पैक्शन,
या डिफ्रैगमेंटेशन से बोलते हैं कि आप डिफ्रैगमेंट क्या करते हो, सारी जो यूजर स्पेस है वो एक जगह रखेंगे, सारी खाली जगह जहां जहां थी वो एक साइड कर दी हमने, है ना। जैसे आपके कमरा है पूरा सा भरा हुआ था, तो इसमें बुक्स वहां यहाँ थी और बीच बीच में खाली जगह थी, बैठने की जगह नहीं थी, तो मैंने वो सारी उठा के एक साइड रख दी बुक्स, और खाली जगह इस साइड कर दी, ताकि यहाँ जगह बचे अब नई प्रोसेसेस के लिए। समझ आ रहा है ना, सिंपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कंपैक्शन में सीपीयू क्या हो रहा है कि कुछ ही टाइम के बाद सीपीयू लग रहा है कंपैक्शन में, क्योंकि कंपैक्शन तो कोई काम ही नहीं ना प्रोसेसिंग का, कंपैक्शन ओवरहेड है, हम काम कम कर रहे हैं, ये होम टास्क सफाई का काम ज्यादा हो रहा है, असली काम तो बैठ गया। तो हमने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, तो इसलिए हमने कॉन्टिग्यूअस जो मेमोरी एलोकेशन है उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया, हमने एक नई सोच लाई, दैट्स कॉल्ड एज नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में मेरे पास 3 मिनट्स है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, बट यू गेटिंग ऑन दिस, के ये समझ आ रहा है यहां तक स्टोरी अच्छे से। अब नॉन कॉन्टिग्यूअस में क्या है कि हमने जो है जॉब, क्योंकि मुझे भरना है रैम के अंदर, और वहां देख रहा हूं मैं कि कभी निकलता है प्रोसेस, कभी ये हो रहा है, तो कभी यहाँ जगह खुली होती है, कभी वहां जगह खुली होती है, कि मेरा ये जो था कि प्लान कि मैं कॉन्टिग्यूअस करूंगा, यानी कि मेरी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इस जगह होगी, पूरी की पूरी प्रोसेस इस पार्टीशन में होगी। मैं अगर ऐसा कर सकूं, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, एक पुतला है, डमी है, ये पूरा इंसान में पहले भर रहा था इस शेल्फ के अंदर, तो मुझे इतनी जगह होनी चाहिए। अब अगर मुझे ऐसा हो जाए कि मैं इस रोबोट की, जैसे मान लो रोबोट है, इसकी मैं हाथ अलग कर सकूं, टांग अलग कर सकूं, इसका हेड अलग कर सकूं, इसकी टमी अलग कर सकूं, फिर मैं अलग अलग जगह भरूंगा। अब मैं इसका हाथ इधर भर रहा हूं इस शेल्फ में, इसका सर इधर भर रहा हूं शेल्फ में, इसका मुंह इधर भर रहा हूं शेल्फ में, इसका पैर भर रहा हूं इधर शेल्फ में। तो ये चीज बन गया नॉन कॉन्टिग्यूअस, कि यानी कि मैंने ये जो मेरी रूल था कि नहीं जी सारा का सारा प्रोसेस एक ही जगह होनी चाहिए, इसको मैंने तोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं प्रोसेस के टुकड़े करूंगा, ठीक है, और इसके टुकड़े कहीं पर भी रख सकता हूं। तो इस चीज को अंजाम देने के लिए हमने एक पेजिंग टेक्निक कर दी, दैट्स कॉल्ड द पेजिंग टेक्निक। व्हाट इज इट कॉल्ड, जो कि हम कल ही पढ़ेंगे बिकॉज आज टाइम जा रहा है। पेजिंग टेक्निक और पेज मेमोरी एलोकेशन और पेजिंग टेक्निक, ठीक है। अब पेजिंग में क्या होता है कि आप पेजेस बनाओगे, छोटी छोटी जगह बनाओगे, किसमें बनाओगे पेजेस, कैन एनीवन टेल मी, नो नीड टू टेल बिकॉज यू विल टेल रॉन्गली। हम पेजेस बनाएंगे प्रोसेसेस के, कि मेरी जो जॉब है या प्रोसेस है, प्रोसेस 1 जो मेरी थी, ये मानो इतनी बड़ी प्रोसेस थी 100K की, अब मैं इसमें टुकड़े करूंगा, प्रोसेस के टुकड़े करूंगा, मैं इसको मानो 5, 6, 10 पेजेस बनाऊंगा इस प्रोसेस के, और जो इस एक पेज का साइज है उतना ही साइज मैं रैम में डिवाइड करूंगा, जो मेरी प्राइमरी मेमोरी है रैम, उसमें मैं डिवाइड करूंगा। अक्सर बच्चों को पता होता है पेजेस शायद जो है वो मेरे रैम के हैं, पेजेस रैम के नहीं है, पेजेस प्रोसेस के हैं, और जो साइज मेरे पेज का है प्रोसेस का, उसी साइज का मैं यहां पे बनाऊंगा, उसे बोलेंगे हम फ्रेम। क्या बोलेंगे, फ्रेम। सो फ्रेम इज इन रैम एंड पेज इज ए प्रोसेस। अब मैंने क्या बोला कि भाई मैं इस प्रोसेस के टुकड़े कर रहा हूं, और ये नहीं कि भाई अगर ये 100K की ये सारी प्रोसेस थी, मुझे उठा के एक पार्टीशन में डालना है, नहीं, आप ये डालो, ये वाला पेज डालो फॉर एग्जांपल इधर, ये वाला पेज डालो इधर, नो प्रॉब्लम। ये जहां जहां जगह कॉम्पैक्शन नहीं करनी है ना, हमें कॉम्पैक्शन प्रॉब्लम हो रही थी ना, क्योंकि यहाँ छोटी जगह हो रही थी, यहाँ जगह बच रही थी। अब ज्यादा बड़ी जगह भी नहीं बचेगी, क्योंकि जितने फ्रेम्स जो पेज साइज है वही फ्रेम साइज है, तो जितनी अगर कहीं पर जगह बचनी भी है तो वो उतनी ही बढ़नी है जितनी पेज साइज होगा प्रोसेस का। इसमें सवाल ही नहीं होता कि ये पहुंचेगा नहीं उसमें, ठीक है, क्योंकि ये उसी साइज का है। और नॉन कॉन्टिग्यूअस, आई कैन पुट एनी पेज एनीवेयर। जैसे मेरा पीछे आपको बुक्स दिख रही हैं, शेल्फ दिख रहे हैं, अब मैंने इस बुक्स के, एक तो पूरी बुक थी, अब मैंने बुक्स के हर एक पेज के, बुक्स के पेजेस के, ये बुक जो थी एक बड़ी थी, इसके 100 पेजेस के, ये 100 पेज के, अब मैं कर सकूं पेज नंबर 1 into